के बाद क्या क्या होता है. And this was the most tiring part of all. I don't know when I'll be traveling back. Hi everyone, welcome back to my channel. I am Shirin Talwar and today in this video I'm going to show my journey from Delhi to Toronto. It's going to be the literal journey, how I'm going to take the direct flight, what are the documents that are required, the questions that people in immigration ask, and all the little things that you would want to know in case you are flying or planning to fly from Delhi to Toronto or anywhere in Canada. So today the date is 18th April and I have my flight in 6 hours, which will be 19th April 3 a.m. So before we get into the details of this video, if you're new to my channel, make sure to subscribe to it and press the like button if you really like it. First things first, I have a direct flight from Delhi to Toronto. It is Air India. The flight timings are 3 a.m. Indian Standard Time and it will be reaching Canada 8:45 a.m. 19th April itself. I'm also going to share the price of the ticket, the meals that are given in the flight as we go ahead with the video. In case you are an international student flying from Delhi or India, there's a list of documents that you require at the airport. And ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे documents मांगे जाएंगे, पर कुछ ऐसे documents हैं जो रखने होते हैं. And I'm going to share the list over here. Along with that, the most important thing is to download ArriveCAN app. Over there, you can scan your documents and give your information. So what happens is कि बहुत ज़्यादा time save होता है when you're at the airport, क्योंकि नहीं तो हमें एक document check करवाना होगा. In 10 minutes, I'm going to leave for the flight. I have my friends and family at home right now. We'll be leaving for the airport and my relatives will be coming there too. And also because it's an all-night flight, I am wearing a sweatshirt. I know अप्रैल के महीने में स्वेटशर्ट नहीं जाती, बट देन यू नो बैगेज एंड अलाउंस, इसके साथ आई बी वेयरिंग स्पोर्ट्स शूज बिकॉज एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा चलना होता है. सो इन केस यू प्लानिंग टू वेयर योर टाइट जीन्स एंड बूट्स एंड ऑल ऑफ दैट, एयरपोर्ट इज़ नॉट द राइट प्लेस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल फ्लाइट्स, क्योंकि बहुत चलना होता है, अलग अलग काउंटर्स पे जाना होता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू एट द एयरपोर्ट एंड वील सी व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड ओवर देयर एंड व्हाट आर द रूल्स दैट वी नीड टू फॉलो. Excited that I'm going? Very धक तो जा रही है इतनी दूर और पता नहीं कब आएगी. जा रहे हो? Yes. डायरेक्ट शादी पर आओगे आप? देख क्या? चलो 1 2 3 We miss you sir. I'll briefly tell you what happens after you enter the airport. आप अपनी एयरलाइंस का चेक इन काउंटर ढूंढते हो एंड वहाँ पे क्यू लगी होती है. सो यू वेट फॉर योर टर्न एंड आप अपना जो चेक इन बैग होता है विच इज़ 23 kgs के 2 बैग. आप स्टूडेंट होते हो तो काफ़ी एयरलाइंस देती हैं कि उनको एक और एक्स्ट्रा बैगेज मिल जाए. एंड इन फैक्ट एयर इंडिया वॉज नोन फॉर इट. एयर इंडिया सबको, सारे स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते तो उनको एक और बैगेज देता था. बट नाउ द रूल्स हैव चेंज्ड. नवंबर से बस 2 ही बैग्स अलाउड हैं, स्टूडेंट्स को अब एक्स्ट्रा बैग्स नहीं मिलते. आफ्टर चेकिंग यू गो टू इमिग्रेशन एंड अगेन दे आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस कि आपका ऑफर लेटर कहाँ है. समटाइम्स दे आस्क यू, समटाइम्स दे डोंट आस्क यू. मेरे केस में इस बार उन्होंने मुझसे नहीं पूछा था, बट दे वर जस्ट कैजुअली टॉकिंग कि कब तक का कोर्स है आपका, कब आओगे. इट्स वेरी कैजुअल. उसके बाद आप जाते हो सिक्योरिटी के लिए. सिक्योरिटी में जो हमारे जो 2 हैंड बैग्स होते हैं विच इज़ एक हमारा लैपटॉप बैग और एक हमारा जो छोटा सूटकेस जो हम कैरी कर सकते हैं 8 kgs का. तो इन दोनों बैग्स को लेकर हम सिक्योरिटी में जाते हैं, वेरन हमें जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उनको बाहर रखना होता है और वो चेक होते हैं. देन वी प्रोसीड to our gates. So these are all the steps. So first we go for check-in, then immigration, security and later towards the boarding gate. तो जैसे मेरी 3 बजे की फ़्लाइट है 3 AM की, मेरा बोर्डिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा 2 बजे का. मेक श्योर यू हैव इनफ मार्जिन व्हेन यू आर कमिंग हियर, कि कुछ घंटे हो आपके पास, 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा देकर आओ. जैसे मेरी 3 बजे की फ़्लाइट थी, आई एंटर द एयरपोर्ट एट 11 एंड अभी मेरे पास कोई बहुत एक्स्ट्रा टाइम नहीं है. आई जस्ट हैव 15 to 20 minutes in hand एंड इतना टाइम लग जाता है स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनल. सो आई एम ऑल सेट टू गो इन
to my flight. Hi, I finally reached Toronto and I'm going to share my on-flight experience with you all. In my case, my boarding started at 2 a.m. 19th April and 3 a.m. को हमारी flight start होनी थी and because it was already midnight, इसलिए जो भी flight थी उसकी सारी lights shut down थी. Biggest drawback of an Air India flight is that the TV screens that you see in front of you, most of them are not working. A lot of airlines provide shows and movies on their screens whereas Air India के अंदर कुछ भी नहीं चलता. Even simple maps भी नहीं आता. I couldn't even select the language. My remote wasn't working जिस वजह से मैं lights अपनी on and off खुद अपनी मर्जी से नहीं कर पा रही थी. Wherein I was using मेरे जो साथ में पैसेंजर बैठे थे उनकी lights to read my novel. In terms of technology, Air India में इतना अच्छा experience नहीं था क्योंकि screen नहीं चल रही थी, remote नहीं चल रहा था and काफ़ी difficulty face हुई, especially when it's a 15.5 hours flight. And talking about the meals provided on flight, they were pretty decent, at least पेट भर गया था. One meal consisted of idli sambar along with सेविया and जो दूसरा meal था उसमें रोटी, चावल, दाल and paneer tha along with the curd, ghee. Because it was a 15-hour direct flight, I could also feel that the passengers around me were also getting restless. Washrooms के आगे line लग रही है, so in that way it was quite uncomfortable. All in all, I would still say कि Air India के साथ अच्छा experience रहा because leg space बहुत अच्छा था. डायरेक्ट फ्लाइट थी, किसी को कुछ सोचना नहीं था कि कब जाना है, कब उतरना है, कौन सी नेक्स्ट फ़्लाइट लेनी है. स्पेशली जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और उनको कुछ आइडिया नहीं है फ़्लाइट्स का, उनके लिए डायरेक्ट फ़्लाइट बहुत इजी है. अगर मैं कहूँगी मैं नेक्स्ट टाइम हो सकता है इनडायरेक्ट फ़्लाइट लूँ क्योंकि उसमें 2 hours का या 3 hours का हॉल्ट मिल जाएगा wherein we can walk for some time, have meals, go to washroom and chit chat, use Wi-Fi. And as I mentioned that I'll also be telling the price of the ticket that I purchased. It was 1,53,000 because I just booked almost 1 or 1.5 months before. अगर आप उससे पहले बुक कर लोगे तो आपको उससे सस्ती भी मिल सकती है. But I knew कि ये मेरी one way ticket है ना. Especially at the time when I booked my flight, उस टाइम पे यूक्रेन एंड रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ था एंड हमें ये नहीं पता था कि कौन सी कनेक्टिंग फ़्लाइट सही रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी. एंड इनफैक्ट इससे हाफ प्राइस पे 70,000 के अराउंड पोलैंड से होती हुई फ़्लाइट मिल रही थी. एंड you know, a lot of people did not go for that particular flight, तभी उसका रेट इतना गिर गया था. Okay, so flight हो गई, एक्सपीरियंस कैसा रहा, खाना कैसा था, पर फ्लाइट से उतरने के बाद क्या क्या होता है. एंड दिस वॉज द मोस्ट टायरिंग पार्ट ऑफ ऑल. वो पूरी प्रोसेस है 3 घंटे की. उस 3 घंटे की प्रोसेस में क्या करना है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, आई हैव एवरीथिंग टू शेयर दैट विद यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर अराइवल्स जिसके अंदर इमिग्रेशन के डिफरेंट काउंटर्स बने होते हैं. आउट ऑफ विच पहला काउंटर होता है जहाँ पे हम अपना पासपोर्ट स्टैम्प करते हैं. इसके लिए बहुत लंबी लाइन थी, इतनी लंबी लाइन थी कि हम ऑलमोस्ट 1 घंटे तक उसी लाइन में खड़े रहे. पहले पासपोर्ट स्टैम्प होता है, देयर इज़ अ मशीन, कंप्यूटराइज मशीन होती है. देयर आर ऑल्सो पीपल फ्रॉम द एयरपोर्ट हु आर हेल्पिंग अस. उसमें हम अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं, एक हमें स्लिप मिलती है जिस स्लिप के थ्रू हम आगे जा पाते हैं. देन कम्स अनदर काउंटर जहाँ पे वो हमारे पासपोर्ट के ऊपर
ग्रीन या पिंक कलर का स्टैम्प लगाते हैं एंड इट्स वेरी रैंडम. आई डोंट नो इफ देयर इज एनी क्राइटेरिया और नॉट, बट आई फील दैट दिस स्टैम्पिंग इज़ वेरी रैंडम. तो जिनको ग्रीन स्टैम्प मिलता है उनको कोविड टेस्ट नहीं करवाना, और जिनको पिंक स्टैम्प लगता है उनको कोविड टेस्ट करवाना होता है, रिस्पेक्टिव उनकी वैक्सीनेशन है नहीं है, जो भी उनके क्राइटेरियाज हैं उसके हिसाब से उनको स्टैम्प मिलता है. इट इज़ सेड कि 20% लोगों को पिंक स्टैम्प मिलता है एंड 80% लोगों को ग्रीन मिलता है. तो जो 20% लोग होते हैं उनको अपना कोविड टेस्ट करवा के ही जाना होता है आगे. थैंकफुली मुझे ग्रीन स्टैम्प मिला था तो मुझे कोविड टेस्ट नहीं कराना पड़ा. उसके बाद नेक्स्ट काउंटर की तरफ जाते हैं. वहाँ पे हमें पता चलता है कि हमें कौन सी साइड जाना है. PR वालों को अलग जगह जाना होता है, डिफरेंट वीज़ाज़ के लिए अलग है. हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली एक अलग पूरा एरिया बना होता है जहाँ पे हम फाइनली बैठ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे चेयर्स है. वहाँ होता है कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड, कि आपका स्टूडेंट वीज़ा कितने से कितने टाइम का है, उसके बाद कि आपके क्या प्लान्स हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस हो सकते हैं. तो ये एक एरिया था जहाँ पे हम सारे के सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे. लकीली मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया, दैट व्हाट्स माई date of birth, but I've heard that sometimes the questions are very difficult. You know, it depends on the mood of immigration officers whether they are going to ask you any questions or not. However, I would still recommend कि अगर आप जा रहे हो तो आपके कुछ आंसर्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए. तो जब हम स्टडी परमिट के काउंटर से निकलते हैं वी एग्जिट, और तब जाके हमें हमारे बेल्ट में से बैग्स मिलते हैं. दिस वाज प्रोबेबली द लास्ट स्टेप. उसके बाद आपको फिर भी 1-2 काउंटर्स पास करने होते हैं, बट वो एग्जिट के पास ही हैं काउंटर्स, तो उसमें इतना इशू नहीं होता. मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी 8:45 AM पर, और मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल पाई थी 12 नून के अराउंड. तो मुझे ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए थे इस पूरी प्रोसेस में. नाउ आई आस्क्ड माय मौसा जी to come pick me up and he had to wait for 3 whole hours, क्योंकि हमें था कि ठीक है आधा पौना घंटा तो लग जाएगा इमिग्रेशन में, बट 3 घंटे एक्सपेक्टेड नहीं था. एंड ये यूजुअली फर्स्ट टाइम होता है, हर बारी इतना कुछ नहीं होगा. कोई आपको फ्रेंड या रिलेटिव कोई ना कोई आपको पिक करने आ रहा है, आपने कोई कैब बुक करी हुई अपनी, तो आप 2 से 3 घंटे का तो एटलीस्ट मार्जिन लेकर चलिए, क्योंकि सारी प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है. और निकलते ही फिर मैं अपने मौसा जी से मिली. ही ग्रीटेड मी वेरी स्वीटली एंड वेरी क्यूटली. दिस इज़ ऑल अबाउट माई direct flight from Delhi to Toronto, and in case this video helped you in one or the other way, make sure you like and comment on this video. Also, don't forget to subscribe on my channel for more such videos, as I'll be sharing my journey as an international student on this very channel. Thank you. See you.